एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफे। तो आज के इस वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट। जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट बुक 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो वहां से रेफर कर सकते हो, पीडीएफ अवेलेबल है तो वहां से भी रेफर कर सकते हो। और इन केस अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question is, निशांत draw a bill for 25,000 on अभिनव। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहले तो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, ये आइडेंटिफाई करना है। हु इज अ ड्रॉवर, हु इज अ ड्रॉई, दिस इज अवर फर्स्ट वर्क। यू हैव टू आइडेंटिफाई ड्रॉवर एंड ड्रॉई, राइट। सो निशांत ड्रॉ अ बिल फॉर 25,000 on अभिनव फॉर 3 months on 17th July 2019, राइट। निशांत ने बिल ड्रॉ किया है, राइट। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। So in this question, Nishant is our drawer, right? And Abhinav, किस पे draw हुआ है? अभिनव पे। Abhinav will be our drawee, right? And the bill amount is 25,000. तो first entry will be bill receivable की entry pass करेंगे, right? Bill drawn हुआ है, तो your first entry will be bill receivable account debit 2. Yes. So this is past journal entry in the books of Nishant. सिर्फ ड्रॉवर के बुक में ही पास करनी है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर की एंट्रीज ही लिख रहे हैं, राइट। यू हैव टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निशांत एंड निशांत इज अवर ड्रॉवर, व्हिच मींस वी आर ओनली प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, राइट। सो हियर वी हैव टू राइट इन द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ Nishant, and Nishant is our drawer. If you want, you can mention this thing, okay, that Nishant is our drawer. The first one will be bill drawn and accepted. So the entry is bill receivable account debit 2. The bill has been drawn on Abhinav account, right? And the amount of bill is 25,000. Okay, 25,000 in debit as well as in credit. So this is our first entry, which is drawn and accepted, right? So the next one is Nishant discounted the bill with his bankers at 12% per annum on the same date. Okay, so the question is, this bill has been drawn for 3 months. This bill has been drawn on 17th July 2019. ये बिल बना है 17th जुलाई 2019 को, 3 months के लिए बिल फॉर्म किया है, ओके, राइट। और अब ऑन द सेम डेट निशांत मीन्स ड्रॉवर ने क्या किया, बिल बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया है। निशांत ने बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया है, तो वी हैव टू पास एन एंट्री डिस्काउंटेड बाय बैंक, राइट। सो द एंट्री इज, सेकंड वन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट discount account debit 2. This is what, bill receivable. So this is your entry for discounted by bank account debit, discount account debit to bill receivable, right। अब bill receivable के सामने कौन सा अमाउंट मेंशन करना है, जो जिस अमाउंट पे आपने बिल बनाया है, राइट। ओके, 25,000. So here you have to write 25,000. But the problem is, अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करें? It is 12.5% per annum. 12.5% per annum. So how you are going to calculate? See, 25,000 into 12.5%. 25,000 का first you have to calculate 12.5%. How we calculate 12.5%? 25,000 into 12.5 divide by 100 and then you're going to multiply it by जितने मंथ्स का बिल है। ये देखो 12.5% per annum है पूरे ईयर के लिए, which means bank is charging 12.5% for 12 months, but your bill is only for 3 months and it has been discounted on the same date. जिस दिन बना है उसी दिन डिस्काउंट हुआ है, 3 month के लिए बना है, which means ये बिल बैंक के पास 3 month रहेगा, तो बैंक is going to charge this percentage only on 3 months. Clear? Okay, so here we are going to write 3 divided by 12. Okay, so here this will be your amount. 25% का 12.5% you have to calculate and then you have to multiply it by 3 by 12, right? So your discount amount will be, let's calculate. So your discount amount will be
25,000 का 12.5% is 3125. Okay, so it is 3125 multiply by 3 by 12. So your discount amount will be into 3 by 12. This is 781.25. तो we can round it off, 780 लिख सकते हो या 781 लिखो, 782 लिखो. ओके, राउंड ऑफ करो, दैट विल बी बेटर. ठीक है, so this is your discount amount which is 780. तो बैंक ने 780 माइनस कर लिया और बाकी अमाउंट आपको दे दिया. बाकी अमाउंट कितना, लेट्स कैलकुलेट. 25 में से you have to minus 780. out of 25,000 a bank has deducted 780 rupees and remitted to you. Let me check. So 25,000 minus 780, your amount will be 24,220. So this will be the amount which you are going to receive from the bank. 24,220 rupees, and this is your discount. In this way we have calculated your discount, and this is your bill amount. So this bill has been discounted by bank from drawer. Okay, on the same date जिस दिन bill बना था उसी दिन discount हो गया है और bill बना है 3 month का. That is why we have considered here 3 month. अगर bill 2 month का होता और same date पे discount होता तो यहाँ पे 2 by 12 करते. Same question है, अगर 1 month के बाद discount होता तो here we have to write 2 by 12. I hope this is clear. Okay, so now after that we have on the due date of bill. अब due date पे क्या हुआ, अभिनय requested निशान. जब रिक्वेस्ट करने की बात आती है ना, रिक्वेस्ट करने की बात आती है, इसका मतलब समझ जाना है कि अब ये बिल रिन्यू होने वाला है. ठीक है, जब रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉवर से तो समझ जाना है इट्स अ रिन्यूअल केस. ठीक है, रिन्यूअल होगा अब यहाँ पे डेफिनेटली. ठीक है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट. ठीक है, अब रिक्वेस्ट हो गया है तो रिन्यूअल केस आ गया है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है. रिन्यूअल केस मतलब क्या, पहले बिल कैंसिल करना है उसके बाद न्यू बिल बनाना है. व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूअल? रिन्यूअल मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू कैंसिल अवर बिल. ओके, वी आर गोइंग टू कैंसिल अवर बिल एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू बिल विद सम न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, तो बिल कैंसिल कैसे करते हैं, डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. बिल कैंसिल मतलब डिसऑनर वाली एंट्री. ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, इन दिस केस योर एंट्री विल बी, ये होती है ना, बताया तो था मैंने, एंट्री क्या होती है, जो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होती है उसकी रिवर्स करनी है. तो द एंट्री इज अभिनव अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. यहां पे एक्चुअली लिखना है बट बिल तो हमारे पास है ही नहीं, बिल बैंक में है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ केस ऑफ डिस्काउंटेड डिसऑनर. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट टू बैंक. बिल नहीं लिखना है, यहाँ पे देखो बिल बैंक के पास है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक. अगर सेंड फॉर कलेक्शन होता है यहाँ पे तो वी हैव टू राइट हियर सेंड फॉर कलेक्शन. अगर यहाँ पे एंडोर्स होता तो यहाँ पे वी हैव टू राइट एंडोर्सी का नाम. क्लियर? ओके, सो वी हैव कैंसल्ड योर बिल एंड योर बिल अमाउंट इज 25,000. ठीक है, योर बिल अमाउंट इज 25,000 एंड दिस इज 25,000. वी हैव कैंसिल्ड योर बिल. अब देखते हैं कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे कैंसिल हुआ है, क्या ड्रॉई हमें इंटरेस्ट पे करेगा और कितना अमाउंट पार्ट पेमेंट करना है नहीं करना है, देखते हैं क्या सब है. ठीक है, नाउ वी हैव ऑन द ड्यू डेट अ बिल अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक. तो अभिनव निशान को क्रॉस चेक दे रहा है 5,800 का इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट. देखो 5,000 सामने वाला जब हमें 5,800 का चेक पे कर रहा है राइट, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 1,800, तो विच मीन्स व्हाट, उसने पार्ट पेमेंट कितना किया 4,000 और इंटरेस्ट कितना पे किया 1,800. आई रिपीट, 5,800 ड्रॉई ने पे किया ड्रॉवर को. ठीक है, विच इंक्लूड्स 1,800 इंटरेस्ट राइट, विच इंक्लूड्स 1,800 इंटरेस्ट. अब मुझे बताओ 5,800 में 1,800 इंटरेस्ट है तो 4,000 ही पार्ट पेमेंट हुआ ना. मीन्स एक्चुअली जो एक्चुअल अमाउंट ड्रॉवर को रिसीव हुआ है, जो एक्चुअल अमाउंट ड्रॉवर को रिसीव हुआ है वो तो सिर्फ 4,000 हुआ है और 1,800 तो इंटरेस्ट है राइट. तो पार्ट पेमेंट हुआ है 4,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,800. तो पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करें, पहले इंटरेस्ट की कर देते हैं. डिसऑनर तो कर दिया हमने, अब इंटरेस्ट ले लेते हैं. इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट अभिनव अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट, ठीक है, कितना मिला इंटरेस्ट? 1800, ठीक है, 1800। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब भी रिन्यूअल का केस होता है ना, जब भी रिन्यूअल का केस होता है, हमारे पास मोस्टली रिन्यूअल की 4 एंट्री है। रिन्यूअल की केस की 4 एंट्रीज है। पहला, आपको आपका बिल कैंसिल करना है। रिन्यूअल मीन्स व्हाट? पहले का बिल कैंसिल करके न्यू बिल फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, वेरी फर्स्ट थिंग इज, यू हैव टू कैंसिल योर बिल, जिसके लिए आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री विल बी डिसऑनर। सेकंड, चेक करना है अगर सामने वाला आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में वी हैव, इन दिस क्वेश्चन वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई वी हैव पास्ड एंट्री फॉर इंटरेस्ट। नहीं रिसीव हुआ इंटरेस्ट तो इसको स्किप करना है। द थर्ड वन इज पार्ट पेमेंट। चेक करना है कि सामने वाला, विच मीन्स ड्रॉई, ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करनी है, नहीं रिसीव हो रहा है तो उसको स्किप करना है। और लास्ट में बिल तो बनाना ही है, ठीक है। बिल बनाने की नॉर्मल एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये 4 एंट्री आपको याद रखनी है रिन्यूअल के केस में। द वेरी फर्स्ट एंट्री इज, पहले आपको आपका बिल कैंसिल करना है। सेकेंड, अगर इंटरेस्ट वो पे कर रहा है तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, नहीं हो तो स्किप कर दो। थर्ड वन इज पार्ट पेमेंट, अगर ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री पास करनी है, नहीं है पार्ट पेमेंट तो उसको भी स्किप करना है। लास्ट में न्यू बिल तो बनेगा ही ना। रिन्यूअल मीन्स व्हाट? पहला कैंसिल करके नया बनाना है, तो फर्स्ट और लास्ट एंट्री तो पक्की है, ठीक है। अब इंटरेस्ट है तो पास करो, नहीं है तो स्किप कर दो। पार्ट पेमेंट है तो पास करो, नहीं है तो स्किप कर दो, ठीक है। इस केस में सब कुछ है, बिल कैंसिल किया, ठीक है, डिसऑनर एंट्री, इंटरेस्ट है, राइट। अब पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट मीन्स व्हाट? ड्रॉवर इज गोइंग टू पे समथिंग टू ड्रॉवर, which means drawer is receiving the money, right? So your fifth entry will be cash or bank account debit to, ये जो अमाउंट है कौन पे कर रहा है? ड्रॉई, एंड द नेम ऑफ ड्रॉई इज अभिनव। सो हियर वी हैव टू राइट अभिनव, ठीक है। इन टोटल में कितना पे किया है? 5800। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 5800 एंड 5800। इस 5800 में 4000 रुपीज जो एक्चुअल अमाउंट है वो है, और 1800 इंटरेस्ट का इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट वन, डिसऑनर, इंटरेस्ट, एंड दिस इज फॉर पार्ट पेमेंट। सो द लास्ट एंट्री इन द केस ऑफ रिन्यूअल इज न्यू बिल को फॉर्म करना, राइट। सो न्यू बिल फॉर्म करेंगे। So we are going to form new bill. New bill की entry, normal entry, drawn and accepted, right? So the entry for drawn and accepted is bill receivable account debit to अभिनव, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे अमाउंट क्या लिखना है? क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि न्यू बिल इतने का बनेगा, हमें खुद फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Our first bill was drawn for 25,000, ठीक है। फर्स्ट बिल वॉज ड्रॉन फॉर 25,000, ओके। उसके बाद हमने डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करके इतना अमाउंट रिसीव हुआ। देन नेक्स्ट इज ड्यू डेट जब आई तब बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। ड्रॉइंग में हमें 5800 पे किया, जिसमें से 1800 इंटरेस्ट है उसको साइड में कर दो, 1800 को साइड में कर दो, मतलब जो है 4000 ही रिसीव हुआ है। 25 रिसीव करना था, 4 ही रिसीव हुआ है, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है दैट इज 21,000 रुपीज। Out of 25,000 we have received only 4,000, right? See, 5,800, 4,000 was included in this thing, and plus 1,800 which is for interest. We are not going to consider interest. We have to receive 25,000, but we only have received 4,000 rupees, which means 21,000 rupees is still pending. तो जो न्यू बिल का अमाउंट होगा वो 21,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू बिल बनेगा वो 21,000 के लिए बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर न्यू बिल अमाउंट, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 21,000 कहां से आया। 25 का बिल था, यहां पे से 4 रिसीव हुआ, 1800 इंटरेस्ट है, और जो रिमेनिंग है 25 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 21 यू हैव टू रिसीव फ्रॉम ड्रॉई, राइट। सो दिस इज योर न्यू बिल अमाउंट विच इज 21,000, ओके। चलो अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट इज बिफोर ड्यू डेट। नाउ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, न्यू बिल के बिफोर द ड्यू डेट अभिनव रिटायर द बिल। रिटायर का मतलब क्या होता है? बिल की ड्यू डेट आने से पहले ही हमें पैसा रिसीव हो गया, वी हैव रिसीव्ड द मनी बिफोर द ड्यू डेट एंड दिस थिंग इज नोन एज रिटायर्ड, ओके। सो वी आर गोइंग टू रिसीव आवर मनी बिफोर द ड्यू डेट। रिसीव कर लो, जो मिल रहा है ले लो। सेवेंथ एंट्री, लास्ट एंट्री विल बी कैश
रिटायर्ड की एंट्री क्या होती है? कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट, वी आर रिसीविंग मनी, राइट? कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट। रिटायर्ड में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं, दैट इज नोन एज रिबेट, और यू कैन कॉल इट डिस्काउंट। रिबेट अकाउंट डेबिट टू, उसका बिल उसको वापस दे देंगे, टू बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल के सामने बिल अमाउंट हमेशा लिखना है, सो दिस इज 21,000। नाउ लेट्स सी कि कितना रिसीव किया एक्चुअली। इन दिस क्वेश्चन, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250, ठीक है? अभिनव ने रिटायर किया 20,250 पे 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है? विच मीन्स 3 महीने का बिल था, 2 ही महीने में अमाउंट पेड कर दिया। कितना पे किया? 20,250। सो इन फ्रंट ऑफ कैश वी आर गोइंग टू राइट 20,250, और जो हमें नहीं मिला, जो नहीं रिसीव हुआ, दैट वी कैन कंसिडर डिस्काउंट, राइट? So which means we have given a discount of 750 rupees and we have completed this question. I hope कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि एक्चुअली हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया है। पहले बिल बनाया है, फिर उस बिल को डिस्काउंट किया है, फिर रिन्यूअल केस आ गया। रिन्यूअल केस में होती है 4 एंट्री, पहले होता है डिसऑनर, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, देन न्यू बिल, ठीक है? और इस केस में सब कुछ इंक्लूडेड था, सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में। डिसऑनर, interest was also there, part payment was also there, right? And new bill has been formed for 21,000, okay? और on before the due date, जो new bill form किया है before the due date, Droy has retired the bill for 20,250 rupees, and 750 rupees will be your rebate. You can call it as a discount, and this is your bill amount. And we are done with this question, okay? So I hope कि ये question आपको समझ गया होगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।